Empowering women, empowering the world. Our slogan resonates with today's webinar series, fourth day on Women and Law, organized by Vidik Sahayata and Nani Palkiwala National Law Club. This event brings together legal expertise and support. Nani Palkiwala National Law Club, a pioneer in promoting legal awareness and excellence, and Vidik Sahayata, a trusted name in legal support and guidance, have come together to bring this opportunity to you all the participants. Today's web lecture on protection of women in criminal laws, where we will see laws protecting women from crimes like rape, dowry, and domestic violence, IPC provision and landmark judgment, role of law enforcement agencies in protecting women, recent update and developments in women's safety laws. Now, I would like to extend a warm welcome to our esteemed speaker, Advocate Jayaprakash Bansilal Somani, MBA Foreign Trade Law, and advocate at the Supreme Court of India with over 3 decades of distinguished legal practice and author of 65 plus books on Supreme Court case laws. Founder of JSAS Law Firm, he leads a team of 16 associates, including 6 AORs. And our respected CEO, Dr. Priya Thakur, a champion of women's empowerment, a leading Sahayata Foundation, and working with multiple NGOs to promote women's achievement. Her tireless efforts inspire us all. Along with all participants, you are the driving force behind this webinar. Welcome to our guest and welcome to our speaker. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Shruti. Sorry to all the participant. We have shared you link very late after 4 p.m. But we will complete this program and we will upload this video on YouTube also, and link will be shared accordingly in due course. So give me a few seconds. Yes. So today's subject is property right. No property right. Our subject is protection. Yes, protection of a woman. Property right for women in India was our yesterday's subject, but today's subject is protection of women under criminal law in India. I have developed just blog on this. This blog will also be published on our website jayprakashsomani.com or supremecourtlawfirm.com in due course. So I will elaborate today's subject with relevant statutory provision and leading case laws with its citation also. दोस्तों फर्स्ट हम देखेंगे इंट्रोडक्शन. प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम वायलेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन is a fundamental objective of Indian criminal law. जो भी वुमेन है, श्री है, इसका वायलेंस से प्रोटेक्शन होना, एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्शन होना, दिस इज द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिमिनल लॉ. द लीगल फ्रेमवर्क हैज evolved significantly through statutory reforms and judicial interpretation. Historically, offences against women were governed by the Indian Penal Code 1860 IPC. But with the effect from 1st July 2024, these provisions have been replaced by Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, that is called BNS. पहले IPC था और अभी BNS है. So here arises a question in the mind of specifically lawyers कि भाई IPC यूज करना है कि CRP ये BNS यूज करना है या CRPC यूज करना है या BNSS यूज करना है. So IPC and CRPC is not into existence now. So whenever new FIR, everything, when you are filing anywhere or you draft a case and filing that case, that time you should mention new laws. But for safer side, in bracket, you can mention older law and older section also. क्योंकि 40 साल से, कितने साल से, 40 नहीं ज्यादा, 100 साल से कम IPC CRPC दिमाग में है लोगों के. तो जजेस हो, लॉयर्स हो, सो BNS का सेक्शन ब्रैकेट में IPC का लिख.
सीआरपीसी, बीएनएसएस का सेक्शन, सीआरपीसी का सेक्शन ब्रैकेट में लिखो। सिमिलर वे बीएसए का सेक्शन अंडर एविडेंस एक्ट का सेक्शन लिखो, दैट विल बी अ बेटर। फॉर द अपीलेट कोर्ट लॉयर, जो हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में काम करते हैं, उनके पास जो मैटर आते हैं वो अगर 1 जुलाई 2024 के पहले के हो गए तो उनको वो सीआरपीसी आईपीसी ही यूज करना है। ब्रैकेट में वो बीएनएस डाल सकते हैं फॉर करंट अफेयर्स। सो नोट डाउन दिस पॉइंट। The new code substantially retain the offenses but renumbered and reorganizes provisions related to the crimes against women। थोड़ा स्ट्रेंथ हुआ है, अच्छा कोड हुए है, उसका रीऑर्गेनाइजेशन किया है और बहुत अच्छे स्ट्रेंथिंग जिसको बोलते हैं हम, एक पक्का करना कानून, ऐसा हुआ है इसमें। while strengthening the punishment in certain cases। Protection of women under criminal law is also rooted in constitutional guarantees under Article 14, 15(3) and 21 of the Constitution of India, ensuring equality, dignity, and protection of life and personal liberty. So, first part, rape and sexual assault. First, I will give you statutory provision. In old law, IPC section 375, in new BNS section 63, definition of rape. Section 376 in IPC, now in BNS section 64 to 71, punishment for rape. Section 376D IPC and in new law BNS, that is section 70, gang rape. So, essential ingredients. Rape is committed when a man has sexual intercourse with a woman against her will, without her consent, consent obtained by fear or coercion, consent obtained by impersonation, consent obtained when she is intoxicated or mentally unsound, when the woman is under 18 years of age, when she is unable to communicate consent. So, ये इंग्रेडिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब भी आप प्रोसिक्यूशन के लॉयर है तो यू हैव टू प्रूव दिस कि भाई वुमन के ऊपर जो रेप हुआ वो अगेंस्ट हर विल हुआ, विदाउट हर कंसेंट हुआ, उसके इच्छा का व्यतिरिक्त था, उसके अनुमति के बिना हुआ, जो भी अनुमति ली है वो डरा के धमका के ली है, या उसको बहला फुसला के लिए है, या नशे में उसको रख के लिए है, या अगर वो वुमन 18 साल के नीचे है और even though she have given the consent, it is also amounting to the rape. When she is unable to communicate the consent, ये सब इंग्रेडिएंट इसमें जो इंग्रेडिएंट है दिए है वो अगर कंप्लीट होते हैं तो प्रोसिक्यूशन लॉयर कैन प्रूव दैट केस। और डिफेंस लॉयर बोल के आपके पास अगर केस है तो आपको फिर डिफेंस का काम करना है। फिर जो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है वो औरत के साथ, वो उसके कंसेंट से कैसा हुआ है ये प्रूव करने की कोशिश करना है। तो ये दोनों एंगल से हो गया। अभी रहा वुमन एम्पावरमेंट एंगल से। अभी तो मैंने जो बात किया थ्रू द आईज ऑफ एडवोकेट, अभी मैं बात कर रहा हूं थ्रू द आईज ऑफ द इंडियन सिटीजन। हमारे देश में वुमन सुरक्षित रहनी चाहिए। रात को 12 बजे 1 बजे भी अगर वो ट्रैवल करती है, करना नहीं चाहिए, वुमन ने भी नहीं करना चाहिए और मेल ने भी नहीं करना चाहिए। रात को कभी भी देर रात से ट्रैवल नहीं करना चाहिए। लेकिन बाय चांस कभी कभी इमरजेंसी आ जाती है, ट्रैवल करती है तो भी वो सेफ होनी चाहिए।
ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है, इसलिए हमको ऐसी चीजों को कभी प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए, हमको ऐसे चीजों का विरोध करना चाहिए। एंड इफ रेप इज प्रूव्ड, then what is the punishment for that? So punishment generally ranges from 10 years imprisonment to life imprisonment. Minimum 10 years तो होता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक चला जाता है। बीच में ऐसा माना जाता था कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट बोले तो 14 साल। नाउ डेज थिंग्स आर चेंज। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का अर्थ अभी लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही है। हाँ, उसको कम करने के अधिकार, रेमिशन करने के अधिकार ये स्टेट के पास है। वो कभी कभी 14 साल में भी छोड़ते हैं, कभी कभी उसके पहले भी छोड़ सकते हैं। एंड इन एग्रीवेट केसेस, बहुत हीनस ऑफेंसेस हैं, लड़की के साथ रेप करके उसके गुप्त अंग को ईजा पहुंचाई है, उसको फिर बुरे तरीके से मारा है, पीटा है, ऐसा हीनस तरीके से अगर किया है ना क्राइम, तो इस केस में डेथ पेनल्टी में बी इम्पोज्ड। निर्भया का केस है ना, जो आगे मैं केस लॉज में दूंगा आपको, मुकेश वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, इसमें सबके सबको डेथ सेंटेंस हुआ है। तो बोलने का तात्पर्य यह है कि 10 years तो मिनिमम होता ही होता है, बट इट कैन गो टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। एंड इन हिनस ऑफेंसेस, क्रूर, जिसको हिनस का मतलब क्रूज, क्रूर, हिनस ऑफेंसेस में ये और रेप की डेफिनेशन भी अभी काफी एलेबरेट हो गई है। पहले रेप का मतलब खाली इंटरकोर्स, पेनिस वैगिना में एंटर करेगा औरत की इच्छा व्यतिरिक्त, तभी इंटरकोर्स माना जाता था। अभी काफी डेफिनेशन चेंज हुई है। सो आप वो पर्टिकुलर सेक्शन में जाएंगे, यू विल गेट द डेफिनेशन। हम सेपरेट अलग भी इसका वेबिनार ले सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। हम आज जो कवर कर रहे हैं, ऑल क्रिमिनल लॉज विच आर प्रोटेक्टिंग टू वुमेन, इसके ऊपर विथ केस लॉज एंड विथ साइटेशन विथ इंपॉर्टेंट सेक्शंस आल्सो। सो इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रेसिडेंट, मुकेश वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली, साइटेशन 2017 का केस है, 6 SCC 1। The Supreme Court upheld that the death sentence for the convict in the Nirbhaya gang rape case. The court emphasized that the rape is a crime against the dignity and bodily autonomy of woman and falls within the ambit of Article 21 of the Constitution. जरूर पढ़ना चाहिए ये केस। पूरा केस नहीं पढ़ पाए, पूरा जजमेंट नहीं पढ़ पाए, तो स्टार्ट के फैक्ट्स पढ़ो और बाद के एंड में जजेस का फाइंडिंग पढ़ो। दैट विल बी सफिशिएंट। पूरा पढ़ पाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहता। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह, 1996 2 SCC 384। Supreme Court held that trial of rape cases should ordinarily be conducted in camera. The testimony of the prosecutrix, if credible, does not require corroboration. ये बहुत अच्छे फाइंडिंग दिए हैं, दोनों फाइंडिंग है। So that proceeding should be in camera, and testimony of prosecutrix means जो विक्टिम है उसकी टेस्टिमनी, इफ क्रेडिबल, अगर उसका बयान क्रेडिबल है तो डज नॉट रिक्वायर कोरोबरेशन, कोरोबरेटिव एविडेंस की जरूरत नहीं है। ऐसा फाइंडिंग इसमें दिया है। बोधिसत्वा गौतम वर्सेस शुभ्र चक्रवर्ती, citation 1996 1 SCC 490। The court held that rape is a violation of fundamental rights under Article 21, and interim compensation can be awarded to the victim during the pendency of criminal proceedings। हमारे पास केस आया था एक,
और हमने वो केस जिताया। विक्टिम को नीचे के ट्रायल कोर्ट ने लाइफ इन इम्प्रिजनमेंट दे दिया। हाई कोर्ट ने उसको एक्विटल कर दिया। विक्टिम के पापा हमारे पास आए और हमने वो केस स्टैंड करके वापस पनिशमेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो एक जस्टिस की एक मांग रहती है। तो ऐसे काफी केसेस आते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन एक केसेस लड़ते समय, पढ़ते समय मन ऐसा सुन्न हो जाता है। एक लिटिल बिट एक मायूसी आ जाती है। एजुकेशन है, सब कुछ है, तो भी क्यों ऐसे लोग करते हैं? ऐसे नहीं कि गवार लोग ही ये रेप वगैरह करते हैं, एजुकेटेड लोग भी कर रहे हैं। एक कैप के वगैरह में तो कितने होते हैं। कोई बीच में मूवी देखा तो उसमें बताया था कि हर 20 मिनट्स के बाद हमारे देश में एक रेप हो रहा है, आफ्टर एवरी 20 मिनट्स। क्या चीजें हैं। और जितने रजिस्टर्ड होते हैं उससे कई गुना ज्यादा है जो अनरजिस्टर्ड है, रजिस्टर ही नहीं होता है। लड़के डर के, या लड़की के पापा मम्मी समाज के डर से रजिस्टर ही नहीं करते हैं। ये सिचुएशन से बाहर आना चाहिए दोस्तों, बहुत जरूरी है। बिल्कुल सपोर्ट मत करो। लॉयर बोल के केस लेना पड़ता है, ये बात अलग है, लेकिन ईमानदारी से वो केस देखो, वो केस में अंदर जाओ, डॉक्यूमेंट देखो, ईमानदारी से केस लड़ो। अगर सही में वो निर्दोष है तो निर्दोष सिद्ध होगा, अगर दोषी है तो दोषी हो जाए। इसलिए कोई भी केस रहो, जब भी कोर्ट में जाता हूं ना, तो जाते समय भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करता हूँ, आज मेरे क्लाइंट को जस्टिस दे। मैं ये कभी नहीं बोलता कि मेरे क्लाइंट के फेवर में डिसीजन दे। मैं इतना ही बोलता हूँ कि गिव द जस्टिस टू माय क्लाइंट। अगर मेरा क्लाइंट सही है तो उसको सही न्याय दे, गलत है वैसा दे, लेकिन ईमानदारी से हम ईच एंड एवरी चीज के लिए दिल से कोशिश करते हैं। फिर वो विक्टिम का केस आओ या फिर वो हमारे पास डिफेंस का केस आओ, इट मेक्स नो डिफरेंस। चलो सेकंड पार्ट में जाते हैं। असल्ट एंड आउटरीच द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। विनय भंग जिसको बोलता है, उसका विनय भंग करना, उसको छेड़छाड़ करना, उसको आउटरीच ऑफ द मॉडेस्टी, असल्ट करना, ये सब दिया है। इसके काफी सेक्शंस हैं। अभी आई विल रीड सम स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। आईपीसी में सेक्शन है 354, जो अभी बीएनएस में 74 है, असल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू आउटरीच मॉडेस्टी। देन 354 ए आईपीसी, 75 बीएनएस, सेक्सुअल हैरेसमेंट। सेक्सुअल हैरेसमेंट का लड़कियों को स्कूल में छोड़ने के लिए जाते हैं, तब उनको थोड़ा सा हैरेस करना सेक्सुअली, रेप नहीं कर रहे हैं लेकिन कुछ ऊपर के पार्ट को रब कर रहे हैं, सीने के ऊपर रब करेंगे, ये करेंगे, या कुछ ऐसे अभाव करेंगे। कोई अगर किसी फालतू की ब्लू फिल्म वगैरह बताता है, ये सब सेक्सुअल हैरेसमेंट में आता है। 354 बी आईपीसी, बीएनएस 76, डिसरोबिंग अ वुमेन। किसी वुमेन को अगर निर्वस्त्र किया जाता है या उसे उसके शरीर के ऊपर के वस्त्र निकाले जाते हैं, तो भी ये बहुत सीरियस ऑफेंस है। 354 सी आईपीसी, बीएनएस सेक्शन 77, वाइजिरिम। वाइजिरिम का मतलब ये होता है कि अ, वो स्नान करते समय, करते समय चुपचाप देखना, उसके फोटो निकालना, ये करना वो करना, उसको एक क्या बोलते हैं, विथ क्रिमिनल इंटेंशन, बहुत सीरियस ऑफेंस है। 354 डी 78, 354 डी आईपीसी, 78 बीएनएस, स्टाल्किंग, ताकते रहना, घूरते रहना, उसको परेशान करना,
509 IPC, 79 BNS, word, gesture, or act insulting modesty. These provisions criminalize physical, verbal, and digital harassment directed at women. Uh, Let me elaborate with some judicial interpretation case laws. Rupan Deval Bajaj versus KPS Gill. Citation 1995, 6 SCC 194. The Supreme Court held that slapping or physical misconduct directed at a woman in a sexually offensive manner amounts to outrage modesty under section 354 ऑफ आईपीसी. ये जरूर तो जजमेंट पढ़िए. इसमें काफी उदाहरण काफी अलग अलग सिस्टम से देके जज ने समझा है कि what comes under the outraging the modesty of woman, which is punishable under section 354. State of Maharashtra versus Major Singh. Citation AIR 1967 SC 63. The court held that even a minor girl possesses modesty, and any act outraging such modesty would fall within the ambit of section 354 of IPC. तो गर्ल माइनर है तो भी उसको मॉडेस्टी है. पार्ट 3 एसिड अटैक. एक होते हैं ना वो एक तरफा प्रेम में वगैरह, एसिड अटैक. स्टैट्यूटरी प्रोविजन आईपीसी सेक्शन 326A BNS equivalent provisions written in BNS. Offense acid attack. Then IPC section 326B offense attempt to throw acid. Punishment includes minimum 10 years imprisonment, extending to life imprisonment, along with the compensation. वुमन के खिलाफ का कोई भी ऑफेंस रहो दोस्तों, ये लगभग मिनिमम 7 साल के आगे की ही पनिशमेंट है. एंड ये याद रखना कि 7 इयर्स के आगे पनिशमेंट के कोई ऑफेंसेस अगर रहते हैं तो इसमें एंटीसिपेटरी बेल मिलना बहुत मुश्किल होता है. रेगुलर बेल भी बहुत कसरत करके मिलता है. हाँ, 7 साल के नीचे का अगर ऑफेंस है सो एंटीसिपेटरी बेल कैन बी इजीली गेट थ्रू ट्रायल कोर्ट, नहीं तो फिर हमारे कोर्ट तक आना ही पड़ता है. इसलिए हमारे लॉ फर्म में सेपरेट सेक्शन ही है क्रिमिनल का, जिसमें हम सब बेल मैटर, रेगुलर अपील्स सब से, और फॉर्म स्मॉल ऑफेंसेस जिसको हम बोलते रहे 323 वगैरह, यहां से लेके तो मर्डर तक के सभी केसेस हम हमारे वो क्रिमिनल सेक्शन में हैंडल करता है. वी हैव डिफरेंट सेक्शन इन माय लॉ फर्म. क्रिमिनल सेक्शन अलग है, कॉर्पोरेट अलग है, हमारा सर्विस मैटर का सेक्शन अलग है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के सेक्शन अलग है, आर्मी मैटर्स के अलग है, ऐसे प्रॉपर्टी मैटर्स है. तो बहुत योगदान देना पड़ता है, बहुत अच्छा इनपुट देना पड़ता है. लेकिन एक बताऊं क्या आपको, आपको अगर समाज का कल्याण करना है, समाज के कल्याण के हिस्से आप लॉयर बने हैं, समाज में लॉ एंड ऑर्डर एस्टेब्लिश करने के एंगल से लिए है, तो फिर आपको लॉ का स्टडी करते समय, लॉ पढ़ते समय कभी बोर नहीं होता है. एक दिन भी नहीं होगा, एक क्षण भी नहीं होगा. लेकिन आप प्रेस्टीज के लिए लॉयर बने हैं, चलो लॉयर बनने के बाद लोग डरते हैं, एक रुतबा बनता है, पैसे मिलाने के लिए लॉयर बने हैं, तो फिर ऐसे लॉयर को सक्सेस बहुत देर से मिलता है और इसको कभी लॉ में इंटरेस्ट नहीं आता है. इसको पढ़ने लगेगा दिन आ जाएगा, क्योंकि उसको इंटरेस्ट लॉ पे है ही नहीं. उसको इंटरेस्ट पैसे में है, उसको इंटरेस्ट ऑनर में है. माफ करना, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूं, और किसी ने तो वह आईना दिखाना चाहिए ना. सो एनालिसिस कीजिए. जो भी ये वीडियो अभी देख रहे हैं या बाद में यूट्यूब पे देखेंगे, सबने अपना एनालिसिस करना चाहिए. अगर हम लॉयर हैं
तो कौन सी कैटेगरी के हैं? लिटिगेशन खत्म करने वाले लॉयर के कैटेगरी में है, या खाली पैसे कमाने की कैटेगरी में है? पैसा कमाना ही चाहिए, डेफिनेटली कमाना चाहिए। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लगने के लिए, डिग्निटी के लिए पैसा लगता ही लगता है। बट पैसा नंबर 2 पे चाहिए लॉ के प्रोफेशन में। नंबर 1 पे चाहिए आपका कर्तव्य, सेवा। सेवा के बाद मेवा अपने आप ही मिलता है। मुझे याद है कि मैंने 1989 में सनद लिया, तब से लेके आज तक मैंने कभी पैसे के पीछे नहीं दौड़ा। पैसा कब मेरे पीछे आया पता ही नहीं चला। भारत के मेनली मेजर अच्छे अच्छे शहरों में मेरे प्रॉपर्टीज है, सब कुछ है, सब कुछ है। लेकिन आज भी हम पैसे के बारे में नहीं सोचते हैं, रिलीफ दे देते हैं सामने वाले को। सामने वाला गिड़गिड़ाता है, ये करता है, वो करता है, ठीक है, छोड़ देता है। 10 लाख का केस कभी कभी 2 लाख में ले लेता है। 2 लाख का केस रहता है तो कभी कभी 1 लाख में भी ले लेता है। हम फोन पे बात करते हैं ना, तभी समझ जाते हैं सामने वाले का स्टेटस क्या है। हम पैसे के पीछे नहीं भागते हैं। लेकिन किसी का केस हमने 2 लाख में ले लिया, लेकिन वो 10 लाख का केस है, तो हमारा योगदान जो है वो 10 लाख से ज्यादा ही रहता है, इवन दो वी हैव टेकन 2 लाख रुपीज फॉर दैट केस। क्योंकि अपनी क्वालिटी होती है दोस्तों, याद रखना। और आप अच्छे क्वालिटी के लॉयर तभी बन सकते हैं अगर आपको रेगुलर पढ़ने की आदत है। रेगुलर लॉ पढ़ते रहिए, लॉ के अपडेट पढ़ते रहिए। लाइव लॉ है, बार एट बेंच है, कितने ऐप है अभी, कितना इजी हो गया आपको। आप ट्रैवल करते करते केस लॉस पढ़ सकते हैं, सब कुछ था। हम जब लॉयर बने ना तभी कुछ नहीं था। हमको ऑफिस में जाने के बाद ही वो बड़े बड़े ठोकले रहते थे ना, वो ठोकले लेने के बाद ही लॉ पढ़ सकते थे। अभी तो ट्रैवलिंग करते समय पढ़ता है। अभी तो मेरे 500 से ज्यादा वीडियो है यूट्यूब पे। आप ड्राइविंग करते करते भी लगा दीजिए ना मेरे बीएनएस आईपीसी वीडियो, आईपीसी वर्सेस बीएनएस, पूरे आईपीसी बीएनएस कंपेरेटिव सेक्शन आपको चल जाओ, ट्रैवलिंग करते करते करो। बहुत सारे वीडियो है, और मेरे अकेले के नहीं है, काफी है लोग जिन्होंने वीडियो बनाया है। ये जुडिशरी के एग्जाम लेने वाले हैं, इनके भी वीडियो रहते हैं, लगाओ, करो। लेकिन फोकस करो, अनफोकस कभी स्टडी नहीं करना, फोकस स्टडी करना, ऐसा है। चलो आगे जाते हैं। सो लैंडमार्क केस जो है, वो लैंडमार्क केस इसका बताता हूं मैं आपको, कौन सा, एसिड का, एसिड अटैक का। लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, citation 2014 for SCC 427. The Supreme Court issued a direction, regulation of sale of acid, mandatory compensation to victims, mandatory compensation to victim को compensation मिलना ही चाहिए। Free medical treatment for acid attack survivors. This case significantly strengthened victim protection. नेक्स्ट पार्ट 4, मुझे 8 9 10 पार्ट कंप्लीट करने हैं आज। नेक्स्ट पार्ट 4, डाउरी डेथ, स्टैट्यूटरी प्रोविजन। आईपीसी में सेक्शन 304 बी था डाउरी डेथ का, अभी बीएनएस में सेक्शन 80 है। ऑफेंस का नाम है डाउरी डेथ। इसकी इसेंशियल एलिमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट इसेंशियल एलिमेंट है, अ वुमन डाइज विद इन 7 years ऑफ मैरिज। 7 years हो गए मैरिज को, उसके पहले अगर उसका डेथ हो जाता है तो यहाँ पे प्रिज्यूम्पशन माना जाता है। जो भारतीय क्या बोलते, साक्ष्य अधिनियम, जिसको पुराने जमाने में बोलते थे एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इसमें क्लियर कट प्रिज्यूम्पशन है कि भाई उसके फिर पति ने या उसके ससुराल वालों ने, उसके घर वालों ने उसको सताया होगा मरने का, एक डाउरी डेथ का चांस है। होगा ऐसा नहीं, प्रूव नहीं होता है तो नहीं होता है, लेकिन प्रिजम्पशन में आता है। अ वुमन डाइज विद इन 7 years ऑफ मैरिज, डेथ ऑकर अंडर एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में अगर उसकी डेथ होती है, और थर्ड, एविडेंस शोज डाउरी हैरेसमेंट सुन बिफोर डेथ। डेथ के पहले कुछ ऐसे डायलॉग है या फोन कॉल है जिससे डाउरी हैरेसमेंट हो रहा है, ये है।
डाउरी का मतलब दहेज होता है, दहेज। ये दहेज बहुत बड़ा कीड़ा है, कल ही हमने डिस्कस किया है। कैसे क्या बोलते हैं, सैंडविच बन गया है ना अभी समाज का, कभी कभी ऐसा लगता है। बच्चे अपने पसंद की शादी करते हैं तो माँ बाप करना नहीं चाहते। माँ बाप को लगता है कि बच्चे की जो पसंद है वो बोले तो वो बेकार ही रहते हैं। हम जो पसंद करेंगे वही सही है। और फिर हम पसंद करेंगे तो हम जात वाले ही देखते हैं, और जात वाले में दहेज के इश्यूज हैं। कम हुए हैं, लेकिन जीरो नहीं हुए हैं। कितने कम हुए हैं? 50% भी नहीं हुए हैं कम। खाली जो मेजर सिटीज है, एजुकेटेड फैमिलीज है, स्पेसिफिकली जहां पे वुमन, यानी कि उसकी बेटे की माँ अगर वर्किंग में है, तो वहां पे मोस्टली डाउरी के प्रॉब्लम्स नहीं है, क्योंकि वो डिग्निटी खुद झेलती है, और खुद वो अपना वो डिग्निटी अपने बहू को प्रदान भी करते हैं, ऐसा मैंने देखा है। लेकिन जहां पे लालच है, लालची लोग हैं, यहाँ पे डाउरी के प्रॉब्लम बहुत है। इसलिए आई वॉन्ट टू अपील टू ऑल दी गर्ल्स कि डाउरी मांगने वाले को, का मांगने वाले का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डाउरी मांगने वाले के साथ शादी मत करो। ऐसे डायरेक्ट नहीं मांगेंगे, इनडायरेक्ट मांगेंगे, हमको नहीं चाहिए, आपकी बेटी को दे दो। अभी बेटी आएगी तो फिर वो ऐसे ही टू व्हीलर पे घूमेंगी, तो बेटे के साथ तो कैसा दिखेगा, आपको अच्छा नहीं दिखेगा। तो बेटी को आप कार दे दो। फिर अभी किराए के घर में क्यों रहेगी, तो बेटी अपने अपने घर में रहेगी, या छोटा तीन तीन एक बेडरूम का ही मकान है, तो 2 बेडरूम का, 3 बेडरूम का मकान अगर आ जाता है तो बेटी सुख से रहेगी आपकी। हमको नहीं चाहिए, बेटी को दे दो, ये इनडायरेक्ट डॉवरी हो गया। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को खड़ा करके उनके हिप के ऊपर, पिछले पार्ट के ऊपर लात मार के उनको हकाल देना चाहिए। और हो सकते तो रास्ते में पीटते पीटते उनको ऐसा गले में, क्या बोलते हैं ना, चप्पल की मालाएं डालना है, और उसकी फोटो वीटो निकाल के, है ना, अब सोशल मीडिया में डालना है। ऐसा करना पड़ेगा बच्चियों को, जरूरी है। तब जाके रोका जाएगा डाउरी डेथ। प्रोटेक्शन तो बहुत है अभी, और बच्चे अभी होशियार हो रही हैं। तो ये ख्याल में रखना। पनिशमेंट ranges from 7 years imprisonment to life imprisonment। लीडिंग केस है इसका, कंसराज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, citation 2005 SCC 207। The Supreme Court clarifies that the expression soon after her death must be interpreted in practical manner, ensuring that perceptors of dowry harassment do not escape liability। बहुत अच्छा केस है। नाउ आई एम टर्निंग टूवर्ड्स cruelty by husband or relatives। क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स, ये 498 का है ना, जिसको अभी सेक्शन 85 के केसेस बोलता है, स्टैट्यूटरी प्रोविजन, आईपीसी 498 है, बीएनएस सेक्शन 85। मैं दोनों दोनों एंगल से आपको प्रेजेंट करूंगा, थ्रू विक्टिम एंगल से भी करूंगा, और कभी कभी विक्टिम हस्बैंड भी बन जाता है बेचारा इसमें। मिसयूज होता है ये सेक्शन का काफी। जितने कोर्ट में केसेस आ रहे हैं, 50% मिसयूज है, 50% जेन्यून है। जब हमने ये देखा ना, तब हमारे पास एक जूनियर थी, देवप्रिया शाह। उसने मुझे बोला, सर क्या चल रहा है ये? हमने एक किताब तैयार करना चाहिए। फिर उसने मुझे हेल्प किया, और हमने किताब लिखा, जो 65+ किताबें हैं ना हमारी, उसमें एक किताब है क्रुएल्टी अगेंस्ट हस्बैंड। उसमें हमने कम से कम 21 केसेस दिए हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हस्बैंड को निर्दोष करार दिया है, और हस्बैंड के फेवर में डिसीजन दिया है, ये टाइप के मैटर में। क्योंकि ऐसा किताब ही नहीं था, हमने किया। लेकिन हमारे ये भी किताबें हैं कि जिसमें औरत को न्याय मिला है। हम अब वकील है, हमको दोनों साइड रखनी चाहिए। सो ये क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स, इसमें प्रोविजंस क्रिमिनलाइजेस क्रुएल्टी
implicit by husband or relatives includes physical violence. रोज मारता है हस्बैंड, दारू पी के आता है, पिटता है, या कभी कभी मारता है। फिजिकल वायलेंस इस पे कवर होता है। मेंटल हैरेसमेंट, बातें ही नहीं करना, या गुस्सा करते रहना, या ह्यूमिलेट करते रहना, दिस इज कॉल्ड मेंटल हैरेसमेंट। डाउरी रिलेटेड क्रुएल्टी, दहेज रिलेटेड क्रुएल्टी, कंडक्टिंग ड्राइविंग अ वुमन टू सुसाइड, उसको इतना हैरेस करना कि उसको सुसाइड करने का मन करे। मेरे पूरे भारत के बहनों को मेरा बोलना है, दिल में कभी ख्याल भी मत लाइए। जिसने सुसाइड करने के लिए आपको प्रवृत्त करने की कोशिश की है, वो सुसाइड कैसा करेगा, इस ढंग से कानून आपके साथ है, सबके साथ आपके साथ है। खाली किसी के ऊपर अन्याय मत कीजिए, निर्दोष के ऊपर अन्याय मत कीजिए। अगर सही में वो दोषी है तो उसको सजा देना ही देना है, बिल्कुल सुनना नहीं है किसी चीज का। मजबूत बनना है। जयप्रकाश सोमानी बैठा है दिल्ली में आपके रक्षा रक्षा के लिए। मैंने पिछले भी वीडियो में किधर बताया है, हम दिल्ली में मजबूत बैठे हैं। मान्य है कि हम सुप्रीम कोर्ट का ही काम देखते हैं, हाई कोर्ट के आगे के मैटर लेते हैं, लेकिन हमारे सुदानी पारखीवाला के ग्रुप है अलग अलग। उसमें एक ग्रुप है वुमेन्स एम्पावरमेंट का, वुमेन का केसेस से रिलेटेड, वुमेन क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड ग्रुप है, जिसको श्रुति लीड करती है। वहां पे डिस्कशन चलते रहता है। अलग अलग नंबर है, महिला आयोग के नंबर है, ये है पुलिस स्टेशन के नंबर है, महिलाओं को सताया जाता है वो नंबर है, वो नंबर पे कॉल करके फटाफट इंटीमेशन दो, अन्याय मत सहन करो। और थोड़ा भी डर लगता है, थोड़ा भी कुछ लगता है कि नहीं हम कुछ करने जाएंगे कि मारेगा, ये करेगा या कत्ल कर देगा हमारा, तो वहां से निकल जाइए बाहर, जाइए पुलिस स्टेशन से प्रोटेक्शन लीजिए और फिर जाइए अपने घर पे। और माँ बाप को भी मेरा बोलना है कि बच्ची हमारे घर से गई, डोली में गई, तो वो ससुराल से आरती में ही बाहर निकलनी चाहिए। कौन से एज में जी रहे हैं लोग आप? हुँ? बच्ची क्या वस्तु है क्या, कि एक बार शादी कर दी कि गई, हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं है। अरे 2005 के अमेंडमेंट ने उनको और पावर दिया है, कल ही देखा है हमने। सी इज इक्वल को पर्सनल नाउ, तो उसका कोई हक या कोई कनेक्शन आपके घर से नहीं टूटता है। उल्टा आपने एक देना चाहिए, भैया बेटा आप अच्छी रहो, डिग्निटी से रहो, किसी को हर्ट मत करो, सबका सम्मान करो। लेकिन आपका सम्मान अगर डिस्टर्ब होता है तो आपका बाप भाई बैठा है यहाँ पे आपके सुरक्षा के लिए। हाँ, उसके लाइफ में आप अननेसेसरी फालतू की लुड़बुड़ी भी मत करो। ससुराल में लड़की जाने के बाद फिर माँ फोन करती है, आपने खाना खाया क्या, क्या खाया, ये खाया है, ये सच टाइप ऑफ कॉल नॉनसेंस रहता है, इससे झगड़े पड़ता है। बिल्कुल कॉल मत करो, कॉल ही मत करो, वो लड़की करेगी आपको कॉल, बस ऐसी है क्या है, बस है होके कॉल ही नहीं करना, उनको उनका स्पेस मिलने दो। मैं पहले बताया ना कि मैंने आपको दोनों साइड से बताऊंगा, मैं ये चीज ये साइड से भी बताऊंगा, ये साइड से भी बताऊंगा। वकील बोल के बात करना अलग है, एक सिटीजन रिस्पॉन्सिबल नागरिक बल के बात करना अलग है। ये दोनों भूमिका जब हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं तब निभानी ही चाहिए। तो कभी सुसाइड का मन में नहीं लाना, बिल्कुल नहीं लाना मन में। बस मजबूत बनो, आप काली हैं, आप दुर्गा हैं, ये भूलो मत। मेरे पास लॉ फर्म में कितने हैं, 7 8 लड़की लेडीज काम करती हैं। सबको मैं शेर बच्ची बोलता हूँ, ये मेरी शेर बच्ची है, ये मेरी शेर बच्ची है, ये शेर बच्ची मेरी। सबको शेर बच्ची बोलता हूँ, सब में ऐसे शेर नहीं तैयार किए मैंने। और ये श्रुति को किधर भी भेजो ना, मैं बोलो श्रुति काम करके आओ, वो करके ही आएगी वो काम। कोर्ट के किसी रजिस्ट्री के ऑफिस में भेजो, किधर भेजो, किधर भेजो, एपेरी भेज दो, करके ही आएगी। और उन्होंने प्रूव किया है सबके सब हमारे बच्चों ने कि ये शेर बच्चियां है। हमने हमारी बेटी को भी वैसा ही तैयार तैयार किया है, बेटी को ऐसा तैयार किया है।
जब वो कॉलेज में जाने लगी, मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के वर्कशॉप पूरे भारत में ले रहा था। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के वर्कशॉप को प्लानिंग करने के लिए कभी कभी वो बेंगलोर जाती थी, कभी कभी कलकत्ता जाती थी। तो फर्स्ट टाइम जब वो महाराष्ट्र के बाहर जाने लगी, तब मैं महाराष्ट्र में रहता था। अभी मैं 2018 से सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में रहता हूँ। आज भी मेरी फैमिली महाराष्ट्र में रहती है, पुणे में। तब मैंने वो बेटी को बोला, फर्स्ट टाइम जब जा रही थी, तो फिर मैंने उसको एक चाकू दिया मैंने। चाकू बोले तो ये काटने वाला चाकू नहीं, कौन सा एप्पल पेपल काटने वाला चाकू नहीं, उसको क्या बोलते हैं, सुरा। जो चाकू मैंने दिया ना, उसको सुरा बोलता है, मर्डर करने वाला चाकू। वो मैंने उसको दिया। मैं बोला अपने साथ में रखना है इसको, ऑलवेज। पोलाइट, नम्रता रहना, अकेले रहना, होटल में रहना, कोई इशू नहीं है, कुछ भी नहीं। शांत से रहो, इधर उधर ज्यादा देखो मत, और सीधा चलते रहो, कॉन्फिडेंस के साथ रहो। लेकिन कभी ऐसा कोई प्रसंग आया ना कि लगता है कि मुझे अभी इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो बिंदास इस्तेमाल करो। किसी का मर्डर करेगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेरा बाप बैठा हुआ है तुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। आज आर्मी ऑफिसर की वाइफ है मेरे भाई, बेटी। मजबूत बनाना पड़ता है बच्चों को। इंटरकास्ट मैरिज किया उसने, किया नहीं, हमने करवाया। उसने बताया खाली, पापा ऐसा ऐसा है, अगर आप ना बोलते तो हम नहीं करेंगे। दोनों ने डिसाइड किया था कि अपने माँ बाप अगर हमको बोलेंगे तो ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्योंकि उनका प्रेम जो था ना, वो अंधा नहीं था। ग्रेजुएशन होने के बाद उसका भी मिलिट्री में उसका स्टडी चल रहा था, सिलेक्शन का चल रहा था प्रोसेस। तब उन्होंने डिसाइड किया कि हमारे लाइकिंग इक्वल है, सब है ठीक है, हम अलग अलग कास्ट के हैं, लेकिन लाइकिंग सेम है, तो क्यों ना हम साथ में रहे। लेकिन हमारे माँ बाप साथ में देंगे, तो अगर हम बोलते तो हम छोड़ देंगे वो। फिर हमने देखा कि दोनों को क्या क्वालिटीज है, डिसक्वालिटीज है, सब देख। और देखो इतना शान से रहता है, कितने मस्त रहता है। निकलो यार बाहर, इसमें से निकलो, ये जात पात से बाहर निकलो दोस्तों। अभी डिग्निटी देखो, उसका क्वालिफिकेशन देखो, उसकी स्टैंडर्ड देखो, वो चॉइस जो करती है उसको तराशो तो सही। एक बार देखो तो सही, उसने जो चॉइस किया है वो सही लड़का है या नहीं है। लेकिन कुछ नहीं, देखना ही नहीं है। ऑनर किलिंग कर देता है, डायरेक्ट बच्चे को मार देते हैं, दामाद को मार देते हैं। ऐसे भी लोग हैं, आते हैं ना हमारे पास, केसेस आते हैं। कहाँ जाएंगे? आफ्टर ऑल हमारा कोर्ट अंतिम कोर्ट ही है। हमारे पास आज नहीं तो कल आना ही आना है। माफ करना, मैं थोड़ा भावुक हो रहा हूं, लेकिन विषय भावुक होने वाला है। हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये जो डाउरी केस है ना, सॉरी डाउरी नहीं, कौन सा, डोमेस्टिक वायलेंस का, क्रुएल्टी बाय हस्बैंड एंड रिलेटिव्स, 498 का, 498 की जो मैटर है ना, इसका एक अच्छा जो मिसयूज होता है ना प्रॉपरली कभी कभी, उससे रिलेटेड एक केस लॉज है। और कुछ केस लॉज रिलेटेड भी है। अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 2014, 2014 का केस है। 8 SCC 273। The Supreme Court issued guidelines to prevent automatic arrest in cases under Section 498A IPC, directing police to follow procedural safeguards। जरूर पढ़ना है केस, उसमें प्रोसीजरल सेफगार्ड्स दिया है। अभी वो कानून में भी आया है, बीएनएस में, बीएनएसएस में, कि भाई ये टाइप की कंप्लेंट आने के बाद पहले देखो, वो अरेस्ट करने के पहले है, नहीं तो डायरेक्ट आप पति को, माता पिता को अरेस्ट करके लाएंगे। सही में वो केस सही है या है, झगड़े झगड़े में हुआ है या गुस्से गुस्से में हुआ है, पहले तलाश करो। बहुत अच्छा प्रोटेक्शन ये हस्बैंड को, हस्बैंड के फैमिली को ये केस लॉस के कारण मिला है। गिरिधर शंकर तावड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2002 5 SCC 177। The court explained that cruelty must be of such nature as to cause grave mental or physical injury to the woman. The court explained that cruelty must be of such nature as to cause grave mental or physical injury to woman। तो क्रुएल्टी की डेफिनेशन की उन्होंने, कि ऐसा कोई कृत्य जो वुमन को मेंटली या फिजिकली इंजोर्ड करे।
तो वो क्रुएल्टी में आता है। बहुत सही रहते हैं, कानून कानून की जगह पे, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन अफलातून है, बहुत अच्छा है। इसलिए मेरे 65 मेरे ख्याल से 70 के आगे गए होंगे अभी, तो सब बुक्स हम डेडिकेटेड सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ही किए हैं। बहुत वाइज लोग हैं हमारा, और हम देखते हैं ना, बहुत वाइज है। केसेस पढ़ के आता है, पेज नंबर के साथ हमारे साथ बात करते हैं। मिस्टर सोमानी, प्लीज गो ऑन पेज नंबर सो एंड सो, लाइन नंबर सो एंड सो, एंड गिव मी द आंसर फॉर दैट, सीधा। इसलिए वन वे आर्गुमेंट चलता है नहीं है मेरे कोर्ट में। हम तैयारी करके जाएंगे ना हमारे प्लस पॉइंट की, तो वो 2 मिनट में उखाड़ के फेंक देंगे आपको। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में टिकना है ना, तो आपके निगेटिव पॉइंट कौन से है पहले मालूम चाहिए आपको, और निगेटिव पॉइंट को एलेबरेट करो पहले, उसको पॉजिटिव करके जज का काम आसान करो आप, फिर आपके केस हाथ में आता है। उसके ऊपर मेरे अलग अलग कोर्सेज भी है, यू कैन गो ऑन दैट। तो जयप्रकाश सोमानी सुप्रीम कोर्ट ऐसा ऐप है हमारा, उसमें काफी कोर्सेस है, लॉ के कोर्सेस है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के हैं, जरूर देखो। अगर नहीं मिलता है तो आप श्रुति को मैसेज करो, श्रुति आपको दे देगी। बाद में अभी हम छठे पार्ट पे जाते रहे। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ मैरिड वुमेन, स्टैट्यूटरी प्रोविजन, सेक्शन 306 फॉर आईपीसी एंड नाउ बीएनएस 108। अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर भी होता है ये, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। In addition, Section 113A of the Indian Evidence Act raises the presumption of the abetment where a married woman commits suicide within 7 years of marriage after being subjected to cruelty, जो हमने पहले देखा था। तो जो प्रिजम्पशन है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो 113A में, 7 साल के बीच में अगर अंदर अगर मैरिड वुमन का डेथ होता है, तो वहां पे प्रिजम्पशन है कि उसका शायद उसको हैरेसमेंट करके या ऐसे ही करके डेथ हुआ है, मेंटल हैरेसमेंट, क्रुएल्टी, डाउरी, लाइक। इसका लीडिंग केस है पवन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, साइटेशन 1998 3 SSC 309। The court held that continuous harassment for dowry may constitute abatement of suicide. अभी हम जा रहे हैं पार्ट 7 में, किडनैपिंग, ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड मैरिजेस, रिलेवेंट प्रोविजंस, आईपीसी 363, बीएनएस 137, किडनैपिंग। बाद में 366 आईपीसी, 96 बीएनएस, किडनैपिंग टू कंपेल मैरिज, 366 ए आईपीसी, बीएनएस 96, प्रोक्यूरेशन ऑफ माइनर गर्ल, प्रोक्यूरेशन ऑफ माइनर गर्ल, 370, 143 ह्यूमन ट्रैफिकिंग। These provisions criminalize trafficking of women for prostitution, forced labor, और sexual exploitation। ऐसे बच्चों को फंसाया जाता है, चक्कर में फंसाया जाता है। कुछ ऐसे धर्मांध लोग रहते हैं ना, कुछ ऐसे अतिरेकी लोग रहते हैं। अतिरेकी में तो खाली एजुकेटेड अनएजुकेटेड सभी अतिरेकी बन रहे हैं। ये लोग अपने कोई भी ब्राह्मण का विमन का वेश धारण करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बच्चे के ऊपर जाला फेंकेंगे, उसको पकड़ेंगे, और शादी करने के बाद पता चलता है इसकी ऑलरेडी 2 शादियां हो चुकी है। बर्बाद कर देते लाइफ, फिर इसको किधर तो भी कोठे पे बिठा देते हैं, ये करते देते हैं। दैट इज कॉल्ड ट्रैफिकिंग। माफ करना दोस्तों यार, लेकिन क्या करें, विषय ऐसा है। नहीं तो मैं ऐसा एकदम इतना इतना गंभीर या इतना क्या बोलता है, सैड, ऐसा कभी लेक्चर नहीं देता, कभी नेवर। मेरे तो बहुत इंस्पायरिंग रहता है, लेकिन आज का विषय ऐसा है कि मुझे खुद को वो सैड कर रहा है। ये सब चल रहा है समाज में, देखो कितना चल रहा है। ये मसाज सेंटर है, ये जो वेश्यागृह है, इसमें जितनी लड़कियां हैं, ये क्या खुद अपने मर्जी से आई है क्या?
कहाँ से ही है, माइनर गर्ल्स को उठा लेते हैं, उसको बेच देते हैं, माँ बाप को पता भी नहीं चलता है, माँ बाप को लगता है कि बच्ची गुम हो गई। बहुत खराब चीज है, ये सब इसमें आता है। लीडिंग केस, विशाल जीत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, citation 1993 SCC 318. The Supreme Court directs governments to take strengthen measures against trafficking and child prostitutions, including rehabilitation programs for victim. बाई चांस लड़की अगर गलती से अटक गई तो उसका रिहेबिलिटेशन का भी प्रोग्राम बनाओ। और काफी गवर्नमेंट ने किया भी है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन अभी लोगों का, कुछ कुछ लोगों का नेचर ही खराब रहता है। कभी कभी जेल में भी अत्याचार हो जाता है लोगों का। कभी कभी जो लड़की कंप्लेंट करने की जाती है उसके तरफ भी, उसके कुछ, उसके खिलाफ भी उसको भी नजर अलग से दिखता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए ये कानून जो है, इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। पुलिस ने ये याद रखना चाहिए कि हर स्त्री स्त्री भोग की वस्तु नहीं है। हर आदमी ने ख्याल रखना चाहिए, नॉट पुलिस ने, सबने। जो कॉरपोरेट्स हैं, जो अच्छी अच्छी कंपनी है, जो सेक्रेटरी के लिए, पीए के लिए जो लड़की आती है, बस आने के बाद वो भोग की वस्तु है। सभी नहीं ऐसे है, लेकिन कुछ परसेंटेज है। इसके लिए तो पॉश एक्ट है। पॉश एक्ट के ऊपर हम अलग अलग से एक प्रोग्राम सेपरेट लेंगे, उसका जिक्र आगे आएगा। तो हमको ये अवॉइड करना है, हमको ये कम करना है, ऐसा है। नाउ पार्ट 8, स्पेशल क्रिमिनल स्टैट्यूट प्रोटेक्टिंग वुमेन। वुमेन को प्रोटेक्ट करने वाले स्पेशल क्रिमिनल स्टैट्यूट और कुछ मैं बता रहा हूं आपको। अपार्ट फ्रॉम द पिनल कोड एंड सेवरल स्पेशल लॉज प्रोवाइड प्रोटेक्शन। सो प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट 2005, जिसको हम डीवी एक्ट बोलते हैं। डाउरी डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961। जो पॉश एक्ट जो मैं अभी बोल रहा था आपको, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। श्रुति, जैसा हमने क्रिमिनल लॉ महोत्सव लिया, जिसमें क्रिमिनल लॉ के ऊपर ही हमने, सॉरी, कॉर्पोरेट लॉ महोत्सव लिया, जिसमें कॉर्पोरेट लॉ के हमने बहुत अच्छे 7 to 11 या कुछ ऐसे हमने क्या किया है उसको, वीडियो बनाए हैं, यूट्यूब पे डाले हैं अलग अलग। अब ये वुमेन एम्पावरमेंट का ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को जो रहता है, उस ओकेजन के ऊपर हमारा ये सीरीज चल रहा है। ऐसा आप क्रिमिनल लॉ महोत्सव भी एक करो, क्रिमिनल लॉ जिसमें हम सभी क्रिमिनल लॉ कवर करेंगे, नॉट ओनली फॉर वुमन, जनरली सभी करो, यानी कि जो हमारे पीसी एक्ट रहते हैं, बराबर है, प्रोहिबिशन ऑफ करप्शन एक्ट है, पीएमएलए एक्ट है, ये एनडीपीएस एक्ट है, ये बस नशीले पदार्थ के नार्कोटिक ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, बराबर है, इसके भी मैटर आते रहते हैं हमारे पास। तो सभी जितने क्रिमिनल लॉ है, वो क्रिमिनल लॉ के ऊपर, और क्रिमिनल लॉ की जो प्रोसीजर है, जिसको पूरा पहले हम सीआरपीसी बोलते थे और अभी बीएनएसएस बोलते हैं, ये सब मिलके हम एक महोत्सव ऐसा ले जिसमें 7 8 दिन कंटिन्यू करें ऐसा। तो वो रामजेठ मलानी का बर्थडे या रामजेठ मलानी का जो भी कोई डेट अगर मिल जाता है तो वो डेट लिख लीजिए, उनके उनके प्रत्यर्थ हम करेंगे, उनके स्मरणार्थ हम करेंगे ये चीज़ें, क्योंकि रामजेठ मलानी ने बहुत अच्छा क्रिमिनल लॉ में काम किया हुआ है। तो इवन दो नानी पालकीवाला नेशनल क्लब हमारा है, लेकिन हमारे लिए नानी पालकीवाला जितने आदरणीय है उतने ही आदरणीय हमारे लिए बाकी लॉयर भी हैं, जो हयात में है, जो हयात नहीं है, ऐसे सब में है। तो उनके प्रत्यर्थ, उनके नाम के प्रत्यर्थ हम उसको एक डेडिकेट करेंगे और ऐसे करेंगे। हम्म। तो उतना याद रखना। और जब भी हमारा कोई पोस्ट आपको आता है तो मैक्सिमम लॉयर को, मैक्सिमम लॉ स्टूडेंट को, जनरल पब्लिक को, बाकी लोगों को पोस्ट करते रहिए। उनको चांस दे, घर पे बैठ के देखने का चांस मिलता है, अवेयरनेस होता है।
तो वो उतना करें, बस इतना ही मुझे बोलना है आपको, इतना हेल्प हमको चाहिए। वर्कप्लेस सेक्सुअल हैरेसमेंट, द लॉ ओरिजिनेट फ्रॉम द लैंडमार्क जजमेंट। ये जो पॉश एक्ट है ना, वर्कप्लेस का जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है ना, तो वो है, तो उसके ऊपर लैंडमार्क जजमेंट जो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, साइटेशन 1997 6 SCC 241। The Supreme Court framed the Vishaka guidelines recognizing sexual harassment at workplace as a violation of Article 14, 19 and 21 of the Constitution। ये केस में गाइडलाइंस दिए और उसके बाद फिर वो कानून पास हुआ 2012 का, सॉरी 13 का। देन लास्ट पार्ट, अभी लास्ट 2 पार्ट रहे। 9 प्रोसीजरल सेफगार्ड्स फॉर वुमन अंडर द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, अर्लियर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। Important safeguard includes statement of rape victim recorded by woman police officer। रेप विक्टिम का स्टेटमेंट वुमन पुलिस ऑफिसर ने ही रिकॉर्ड करना चाहिए। इन कैमरा ट्रायल फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस, सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए इन कैमरा ट्रायल। इन कैमरा का ट्रायल बोले तो कैमरे लगा के ट्रायल करना, ऐसा नहीं अर्थ है इसका। ये इन ट्रायल कैमरा का अर्थ मतलब होता है, जो जनरल पब्लिक है उसके लिए बताता हूं, कि कोर्ट में खाली जो रिलेटेड व्यक्ति उतने ही रहे, बाकी जनरल पब्लिक कोई नहीं आएगा वहां पे, सबको हकाल के देंगे बाहर इन कैमरा, ताकि उसको अपना पक्ष सही ढंग से पेश करो। हैव शी शुड गेट द करेज टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी फैक्ट रिलेटेड टू दैट मैटर, सो दैट इन कैमरा ट्रायल। हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी कभी कभी ये सेंसिटिव मैटर पे ऊपर इन कैमरा ट्रायल होता है। ट्रायल नहीं होता यहाँ पे, इन कैमरा हियरिंग होता है। नो अरेस्ट ऑफ वुमन एट नाइट, रात को कोई भी वुमन को अरेस्ट नहीं होगा एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में ही हो सकता है। मेडिकल एग्जामिनेशन प्रेफरेबली कंडक्टेड बाय फीमेल डॉक्टर। ये कुछ सेफगार्ड्स अभी BNSS ने दिए हैं। और लास्ट पार्ट, कंक्लूजन। आज का जो विषय है उसमें मेरे थोड़े से अंतिम कुछ वर्ड है। The criminal justice system in India provides comprehensive statutory and judicial protection for women through the penal provisions criminalizing sexual violence, harassment, trafficking, and dowry related offenses. Special statute addressing domestic violence, workplace harassment, and child sexual abuse. 3. Judicial precedent expanding the interpretation of dignity, bodily integrity, and equality under the Constitution. The transition from IPC to BNS reflect an attempt to modernize criminal law while retaining strong protections for women against violation and exploitation. So this is the end of today's program. So Shruti, now you can conclude. एक minute, just a minute. I will. Now you can unmute yourself. As we conclude this enriching webinar on protection of women in criminal laws, I would like to extend my heartful gratitude to our esteemed speaker, Advocate Jayaprakash Somani, for sharing his vast experience and insight on this crucial topic. Protection of women from criminal is a vital aspect of women empowerment, and today's discussion has shed light on the various laws and provisions that safeguard women's rights in India. From IPC provisions to landmark judgment, we have explored the key aspect of protecting women in criminal laws. A big thank you to Vidik Sahayata and Nani Palkiwala National Law Club for organizing this webinar series. And to all the participants, thank you for being an integral part of this webinar. Thank you so much, sir. Thank you.
Thank you.